Hello everyone, here you are seeing syllabus of SO, ASO, CSIR. So today is 26th January 2024 and exam will be conducted between 5 February 2024 to 20 February 2024. So 10 days left. So let's see. So total vacancy is total vacancy, let me check. Where it is given. Yeah, total number of vacancies 444, right? उनमें से 76 है सेक्शन ऑफिसर्स की एंड 368 है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की. देन सेक्शन ऑफिसर पर जनरलिस्ट पोस्ट पे है अनरिजर्व का 13 आउट ऑफ 28, ओबीसी का 7 आउट ऑफ 28. सिमिलरली फाइनेंस अकाउंट पे 7 आउट ऑफ 26 and in your 13 out of 26. Similarly ASO general पे out of 237 66 for OBC and 36 and 96 for unreserved. And for finance account out of 83 22 is for OBC and 35 is for unreserved. Then the main thing, scheme of examination, syllabus, breakup of marks. Let's see. I'm zooming it. Yeah, paper 1 consists of 150 marks. You have to complete paper in 120 minutes. It is 2 hours. And general awareness consists of 100 objective question. One question carries 1 mark and negative marking of 0.33 marks for every wrong answer. Means if you have incorrected three questions, you have incorrect answer of 3 questions, then 1 mark will be deducted. Similarly, for English language and comprehension, 50 objective type questions of 1 mark each with negative marking 0.33 marks for every wrong answer. Then paper 2 will be consist of general intelligence, reasoning and mental ability. It is 200 objective type question, 1 mark and same negative marking if you're incorrect answer of 3 questions, then 1 mark will be deducted. You have to complete the paper in 2.5 hours. It is 150 minutes. Then lastly we have paper 3, descriptive paper. बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है हिंदी. तो क्या आएगा इसमें ऐसे प्रेसियस लेटर 150 marks 2 hours 120 minutes. So then interview getting 100 marks for the post of section officer और ASO के लिए CPT होगा. See paper 1, paper 2, paper 3.
will be common and compulsory for all the posts. Next. For the post of section officer, candidates who secure the minimum threshold marks and aggregate out of 350 marks will be called for paper 3. इसमें मिनिमम रखना है, पर कितना रखना है? Candidates who secure the minimum threshold marks in paper 1, paper 2 and paper 3 in aggregate out of 500 marks will be called for interview. अच्छा, तो ये प्री का जितना भी कटअप जाएगा वो क्रॉस हो जाने पे आपको पेपर 2 पे, पेपर 3 पे जो मेन से लिखने को मिलेगा, मौका मिलेगा, देन उसमें जो कटअप क्लियर होगा तभी जाके आप इंटरव्यू पे बैठ पाएंगे. इट्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इजंट इट? वेटिंग भी आ सकती है अगर वैकेंसीज बाकी हो गई तो. It is final select and wait list will be prepared keeping in view the number of vacancies and total marks obtained by the candidate subject to securing the minimum threshold marks. Similarly वही एसओ के लिए भी वही होगा. जो प्री में पास होगा मेंस के लिए बैठ जाके, फिर मेंस हुआ तो देन सीपीटी के लिए. Okay, let's see the paper 1. Very important. 150 questions within 120 minutes. 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन भी लगाओगे तो 130 होगा. राइट. सो आपका जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो ये टोटल कुल मिला के है 100 मार्क्स. सो आप ये समझो कि डिवाइडेड इच इनटू सेम क्वेश्चंस, देन इट विल बी अराउंड 33. हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन करंट इवेंट्स. राइट, गॉट इट. नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है. आपको कॉम्प्रिहेंशन देना है, देन डू एज डायरेक्टेड, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट आएंगे, प्रीपोजिशंस भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स भी आएंगे, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स. ओके, देन पंक्चुएशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये मिला के कुल मिला के 50 मार्क्स होगी. वाओ, व्हाट अ पेपर. देन देखते हैं जो सेकेंड पेपर है जो उसी दिन होने वाला है. 250 मिनट की मीन्स 150 मिनट्स, 2.5 hour. That will be around 3 PM to starting from 3 PM to 5:30 PM. सो ये डिवाइडेड है 8 सेक्शन में. इसमें ईच सेक्शन विल बी कैरी 25 क्वेश्चंस, मीन्स 25 मार्क्स. सो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स, देन अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स, जनरल साइंस 25, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज 25 मार्क्स. सो ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक का पर्सन बहुत ही कम है. सो इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज.
राइट। देन आता है इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, जो कि 25 मार्क्स का है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 मार्क्स का है। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस 25 मार्क्स का है। ये जो 3 हैं, इसमें से जो इथिक्स से डिसीजन मेकिंग का है, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है। और मैनेजमेंट का पता नहीं कैसा देने वाला है स्टेटमेंट, या फिर जस्ट सिंपल। इतना था नेशनल ज्योग्राफी, बस इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। सो सारे क्वेश्चंस को इक्वल टाइम, इक्वल एफर्ट्स देना है, तभी जाके पेपर निकल पाएगा। सो मान के चलिए इसमें से 150 and out of 150 and 200 total 350, ऐसे 220 स्कोर करना है। And you have to remember each phase's mark is important, unlike UPSC जो उसका प्री रहता है, वो मेंस फाइनल रिजल्ट के लिए ऐड नहीं होता मार्क, बट हियर इट विल बी एडेड। सो आउट ऑफ 350 target would be 220. देन आता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है 2 आवर्स का, 150 मार्क्स का है। इसमें 2 ऐसे आपको लिखना है जो कि 100 मार्क का होगा, ईच विल बी 50 मार्क्स। देन प्रीसेस एक लिखनी है आपको, वो विल बी 30 मार्क्स। देन एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा, एक क्वेश्चन होगा ऑफ 20 मार्क्स। So tentative answer की जब तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन will be made available to candidates through CSIR वेबसाइट अपस्टार्ट एग्जामिनेशन। ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगा आंसर की, आप देख सकते हो। अगर कुछ कमियां लग रहा है आंसर की में, देन यू हैव टू पे 100 पर क्वेश्चंस, जो कि सही है यार। 100 मतलब ठीक ठाक है। कोई तो 1000 मांग लेते, 500 मांग लेते, भिखारी बना के छोड़ेंगे, नौकरी लगी नहीं भिखारी बना के छोड़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब क्वेश्चन फिर रीचेकिंग पे देना है, मतलब सॉरी रीचेकिंग नहीं, मतलब आंसर की अगर लग रहा है कि ये सही नहीं है, फिर उसको आप 100 रुपया देके पर क्वेश्चन आप कंप्लेन कर सकते हो। रीवैल्यूएशन नहीं होने वाला है, रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स। No provision for re-evaluation, rechecking of the scores of any stage of the examination. No correspondence in this regard shall be entertained. Multiple, okay, if conducted in multiple shifts, will be normalized using a formula, and such normalized scores will be used to determine the final merit and cut a mark. The formula will be decided by CSIR and will be notified subsequently through CSIR website. चलो, इतनी तो समझ में आ गया। पर ये लिखा जो री-इवैल्यूएशन, रीचिंग ऑफ द स्कोर्स ऑफ एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, नो प्रोविजन, ये थोड़ा समझ नहीं आई। पर यहाँ पे तो लिख दिया कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन विद इन द टाइम लिमिट एंड रिप्रेजेंट ऑन पेमेंट ऑफ 100 पर क्वेश्चन विच इज नॉट रिफंडेबल।
देन दिया गया है मेथोडोलॉजी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ट्राई केसेस। अच्छा, अगर टाई हो गया दोनों कैंडिडेट्स की तो कैसे वो प्रिपेयर करेंगे? इसमें लिखा है कैंडिडेट विथ मार्क्स इन द पेपर्स which have been considered for preparation of merit of written test placed higher, यानी कि जो आपकी मेन सेक्शन है उसमें जिसका ज़्यादा नंबर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा राइट। और भी लिखा है ये क्या लिख दिया यार, कैंडिडेट्स विथ लेसर नेगेटिव मार्क्स इफ एप्लीकेबल इन द पेपर्स अब रिटन टेस्ट प्लेस्ड है। रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स कैसे है? चलो ये तो लिखते हैं पर यही कंसिडर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होल्डर जो होगा उसको हायर रैंक मिलेगी। कैंडिडेट एक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री अर्ली और प्लेस्ड हायर। ओके, alphabetical order in which first name of the candidates appear. Same for ASO. Next, तो सिटीज वगैरह हैं। मेन बातें हैं आपका सिलेबस देखना। ओके, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कैंडिडेट्स विल हैव टू विजिट द सेसर वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 टेस्ट एंड इंटरव्यू। Intimation for downloading call letter will also be sent through email SMS. Once the candidate clicks the relevant link, he can access the window for call letter download. The candidate is required to use registration number, roll number, password, date of birth for downloading the call letter. And it needs to have a recent recognizable photograph on the call letter. Probably the same is provided during the submission of online application paper and API. The examination center along with the call letter in original photo ID proof age specified in the letter call. Okay. मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते, ये तो जो बेसिक गाइडलाइन है वही सब एग्जाम में होता है, वैसे ही है। Okay, that's it. In another video I'll be covering. ये थोड़ा क्या लिख दिया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। Number of questions answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the corrected score. After applying penalty for wrong answers are applicable. Okay, the corrected scores so obtained by a candidate are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level, if any, in each of the objective tests held in different sessions to arrive at the equated scores. Scores obtained by candidates on any test are equated to the base form by considering the distribution of scores of all the forms. Then test-wise scores and scores on total is reported with decimal point up to 2 digits. ओके, ये आपने बता दिया कैसे कैसे करने वाले हैं।
बस इतना ही था. In next video I'll be covering the detailed syllabus, which is very important. Okay, thanks for watching.